नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी के एग्जाम में आ सकते हैं, साइंटिस्ट बी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टुडे विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। So this is the first numerical, very easy. I'm starting with the easy one. A landfill with a volume of 357,192 cubic feet, मतलब 3,57,192 cubic feet वॉल्यूम है लैंडफिल का. It is being dumped with two cubic ton of garbage every day. If 1 cubic ton of garbage occupies 40 cubic feet of space, how much time will it take to fill the landfill? Okay, so you have the volume of the landfill and you have the amount of garbage being dumped. So let's do the calculations. Amount of garbage being dumped in 1 day, 2 cubic ton. Amount of space occupied by 1 cubic ton of garbage. It is given in the question 40 cubic feet. So amount of space occupied by daily garbage, which is 2 cubic ton into 40, which is 80 cubic feet. तो एक दिन में ये 80 क्यूबिक फीट जो है स्पेस भर जाता है. तो टोटल लैंडफिल को भरने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टू फिल द लैंडफिल साइट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लैंडफिल डिवाइड बाय डेली वॉल्यूम. तो टोटल वॉल्यूम में ये है 3,57,192 डिवाइड बाय 80 और ये है इतना दिन. और इसको अगर आप महीने में या साल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 365 से डिवाइड कर लीजिए और 12.23 आंसर आएगा. सो यू डिवाइड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लैंडफिल बाय the volume of the landfill that is being filled every day, and the answer is 4,464.9 days. And you can convert those days into years by dividing that number with 365. Answer is 12.23 years. So it's very easy. This kind of question can be asked. Now it's very important why I brought up this question. Sometimes this landfill volume, sometimes you might not be given the landfill volume. They will say this is the height of the landfill in some meters and then or feet, and then they will say the area of the landfill is so much, so acres. So you have to we'll have to convert then those acre into square feet. So if the height is given in square feet and the area of the landfill site is given, then you will see, note, 1 acre is equal to 43,560 square feet. So you will first convert the acre into square feet and then multiply it with the depth of the landfill to get the total volume of the landfill in square feet. If the लैंड वॉल्यूम ऑफ द लैंडफिल इज नॉट गिवन ऑलरेडी. तो कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि जो लैंडफिल का वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ था बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया. कभी लैंडफिल का वॉल्यूम नहीं दिया होगा, लिखा होगा कि इतना फीट गहराई है लैंडफिल की और इतना एकड़ लैंडफिल का एरिया है. तो फिर आप एकड़ को पहले स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर उसको गहराई से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकालेंगे. तो एकड़ में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट. ये नंबर याद कर लीजिएगा, 43,56,0. 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,56,0 स्क्वायर फीट. तो जब अगर कभी सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो ये आपको याद रहेगा, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, डिजाइनिंग ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी. इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, given the following parameters of a primary settling tank chamber, and all these questions have been previously asked in UGC NET exams. Diameter is 50 meter, depth is 2.5 meter, average detention time is 2 hours, and how much water is being treated? A, B, C, and D. There are 4 options. So let's look at the calculations. Volume of the settling tanks. Settling tanks are cylindrical in shape, so the volume will be pi r square L. Settling time will be 2 hours, okay, and the diameter is 2, which is 50 meter. Diameter we all know is 2 into radius. Therefore, radius will be 50 by 2, that is 25 meter, and depth the 2.5 meter. Amount of wastewater treated in the primary settling chamber in 2 hours is pi r square L. That is, pi is 22 by 7 into r 50 by 2 diameter का, यहाँ से 50 by 2 का square into L, that is depth. ठीक है, L का मतलब यहाँ पे लेंथ हो सकता है, डेप्थ हो सकता है, डेप्थ. ठीक है, और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर आएगा 4,910.714 मीटर क्यूब. तो ये वॉल्यूम है सेटलिंग टैंक का. तो ये सेटलिंग टैंक का वॉल्यूम है. अब अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीटेड इन 1 आवर,
तो इतना वाटर ट्रीट किया जा रहा है 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है, क्योंकि 2 घंटा सेटलिंग टाइम है, मतलब 2 घंटे में इतना पानी वहां पे जमा रहता है। तो द सेटलिंग टाइम इज 2 hours, so this much water is being treated in 2 hours. So the amount of water treated in 1 hour will be divided by this volume divided by 2. So 2 by 2, 4, 5, 5.357 meter cube. This is the amount of water being treated per hour. So the amount of water being treated daily or in 24 hours will be this amount, 2455.357 meter cube into 24. ठीक है, तो आंसर होगा ये 5892.8.57. So that answer is this one. Answer is A. ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। सिंपली आपने वॉल्यूम निकाल लिया और वो जो वॉल्यूम है वो 2 घंटे में उतना पानी जमा होता है सेटलिंग टैंक में, तो वॉल्यूम डिवाइड बाई 2, 1 घंटे में कितना पानी जमा होगा, और 1 घंटे में आपको पता चल गया इतना पानी जमा होता है, तो उसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। ठीक है, थर्ड, फ्लो रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। ये देखते हैं, अ स्ट्रीम विद फ्लो रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड मीट्स अनदर स्ट्रीम विद द सेम फ्लो रेट। The concentration of phosphate upstream to the junction is 10 milligram per liter, and that of the other stream is 5 milligram per liter. The downstream concentration of phosphate is A 2.5 milligram per liter, B 5 milligram per liter, C 7.5 milligram per liter, या D 10 milligram. So let's look at the calculation. Simply दो स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम का वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड और वो दूसरी स्ट्रीम से मिलती है, उसका वॉल्यूम भी 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड ही है। लेकिन दोनों स्ट्रीम के मिलने से पहले जो एक स्ट्रीम का कॉन्सेंट्रेशन है फॉस्फेट का उसके पानी में वो 10 मिलीग्राम पर लीटर है और दूसरी स्ट्रीम का फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन 5 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अब कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रीम के मिलने के बाद जो फाइनल जो धारा बनेगी, जो स्ट्रीम बनेगी, उस फाइनल धारा जो बन रही है, फाइनल नदी जो बन रही है, उसका फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो बहुत आसान है। फ्लो रेट ऑफ वन स्ट्रीम, स्ट्रीम 1 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम 2 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। सो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ हम जो स्ट्रीम का फ्लो रेट है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 क्यूबिक मीटर है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 5000 लीटर पर सेकेंड हर एक स्ट्रीम का फ्लो रेट है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट अपस्ट्रीम फॉर स्ट्रीम 1 10 मिलीग्राम पर लीटर था। ठीक है, क्योंकि हमने लीटर में इसलिए कन्वर्ट किया गया है क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लीटर्स में है। अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट अपस्ट्रीम फॉर स्ट्रीम 2, ये भी 5 मिलीग्राम पर लीटर था। तो टोटल फॉस्फेट इन स्ट्रीम 1 क्या होगा, डिस्चार्ज जितना पानी है इनटू जितना कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो 5000 लीटर उसमें पानी है और हर लीटर में 10 मिलीग्राम फॉस्फेट है, तो इसका मतलब 5.5 इंटू 10⁴ मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, मिलीग्राम इतना टोटल फॉस्फेट है उस पहली नदी में। दूसरी नदी में भी डिस्चार्ज है 5000 लीटर, लेकिन उसमें फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁴ मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम इतना टोटल फॉस्फेट है उस दूसरी नदी में। पहली नदी में इतना फॉस्फेट है टोटल, दूसरी नदी में इतना फॉस्फेट है टोटल। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। टोटल फॉस्फेट हम पहले जोड़ेंगे कि पूरा फॉस्फेट नदी, एक पहली नदी का और दूसरी नदी का मिला के कितना होता है, और उसको डिवाइड कर देंगे कि दोनों नदी का मिला के पानी कितना होता है। ठीक है, तो 5 इंटू 10⁴ मिलीग्राम पर लीटर प्लस 2.5 इंटू 10⁴ मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रीम 1 एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रीम 2। तो 5 प्लस 2.5 कितना होगा, 7.5 इंटू 10⁴ मिलीग्राम डिवाइड बाय 10,000 लीटर इज इक्वल टू 7.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो सिंपली कुछ नहीं है, क्यूबिक मीटर था उसको आपने लीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लीटर्स में दी गई है। ठीक है, और उसके बाद आपने कैलकुलेट कर लिया कि पहली नदी में टोटल फॉस्फेट कितना है, फिर आपने कैलकुलेट किया कि दूसरी वाली नदी में भी टोटल फॉस्फेट कितना है, उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 7.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अगला देखते हैं, फ्लो रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स का ये दूसरा एक एग्जांपल है। मैं जानबूझ के 2 एग्जांपल दे रही हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। A stream with flow rate of 0.2 meter cube per second and chloride concentration of 50 milligram per liter receives a discharge of mine drainage with a flow rate of 0.05 milligram per meter cube per second and chloride concentration of 1500 milligram per liter. The downstream concentration of chlorine is A 150 milligram per liter, B 200 milligram per liter, C 340 milligram per liter, या D 380 milligram per liter. So let's look at the calculations. Now flow rate of stream 0.2 cubic meter per second in
Now 0.2 into 1000 is equal to 200 liter per second. Okay, we have calculated in liters because the concentration of chlorine is in liter. Now chlorine concentration of the stream 50 milligram per liter. That's fine. Now total chlorine in stream will be total volume of water into concentration, that is 10,000 milligram of chlorine in the stream. Now flow rate of mine drainage. Mine drainage is 0.05 cubic meter per second, that is 50 liter per second. Now chlorine concentration of mine drainage is 1500 milligram per liter. So total chlorine in the mine drainage will be volume of water 50 liter into concentration 1500, that is 75,000 milligram. Okay. Now what will be the concentration of chlorine downstream when the mine drainage mixes with the stream? Total amount of chlorine in the stream plus total amount of chlorine in the mine divided by total amount of water. Just like we did in the last question. Total amount of chlorine in the stream is 10,000 milligram. Total amount of chlorine in the mine drainage is 75,000 milligram divided by volume of water, that is 200 liter plus 50 liter per second. Okay. So here 340 milligram per liter. That is the final calculation. So यहाँ answer is C, 340 मिलीग्राम पर लीटर. अब ये कैसे हुआ? पहले हमने स्ट्रीम का फ्लो रेट कैलकुलेट किया, तो 2 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया. ये यहाँ पे फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम हुआ और स्ट्रीम का क्लोराइड कंसेंट्रेशन कितना है? 50 मिलीग्राम पर लीटर. तो जो वॉल्यूम है पानी का उसको कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे. 200 लीटर पानी में 50 मिलीग्राम पर लीटर, हर लीटर में क्लोरीन है, 1 लीटर में 50 मिलीग्राम, तो 200 लीटर में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे. 10,000 मिलीग्राम, 10,000 मिलीग्राम कॉन्सेंट्रेशन है, टोटल क्लोरीन है उस नदी के पानी में जो हर सेकंड निकलता है. ठीक है. फ्लो रेट ऑफ माइन. अब माइन का फ्लो रेट है 0.05 क्यूबिक मीटर, उसको भी 1000 से इंटू करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लीटर पर सेकंड. फ्लो रेट ऑफ माइन निकल गया लीटर में. अब क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन माइन का है 1500 मिलीग्राम पर लीटर, तो टोटल क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन जो हर सेकंड डिस्चार्ज हो रहा है माइन से, उसमें कितना होगा? 50 लीटर इंटू 1500 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 75,000 मिलीग्राम. ये माइन का है. ठीक है, तो माइन का निकल गया. अब डाउनस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि जब माइन का जो ड्रेनेज है वो जब उस स्ट्रीम से मिलता है, उस नदी से मिलता है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन का कितना होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नदी में जो टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन है प्लस जो माइन से टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन निकल रहा है, ठीक है, टोटल को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और तब आंसर आएगा 340 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, तो बेसिकली इसमें सिंपली जो वॉल्यूम होता है उसका खेल है. पहले अगर क्यूबिक मीटर में दिया है तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए और उसको जो कॉन्सेंट्रेशन है पर लीटर पोल्यूटेंट का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल पोल्यूटेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और फिर उस हिसाब से आगे कैलकुलेट कर दीजिए. बहुत आसान है. अब ये बहुत ही इजी एक और रिलेशनशिप है, लेकिन इससे भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे. वो है पीएच का रिलेशन. तो हम जानते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, और ऑल्टरनेटिवली एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच. ठीक है, thus with every 1 unit decrease in pH the concentration of hydrogen ion increases by a power of 10. तो pH जब 1 यूनिट से घट जाता है तो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 गुना बढ़ जाता है. जैसे pH अगर 5 है, if the pH is 5, the concentration of H plus is 10 to the power minus pH. So H plus is equal to 10 to the power minus 5. So the concentration of H plus is 10 to the power minus 5. तो pH अगर 5 है तो concentration of H plus 10 to the power minus 5 होगा. But if the pH is 4, then H plus is equal to 10 to the power minus 4. Thus the concentration of H plus is equal to 10 to the power minus 4. So यहाँ पे जब pH 5 था तो concentration था 10 to the power minus 5, और जब pH 4 है तो 10 to the power minus 4 है, तो concentration यहाँ 10 गुना बढ़ गया है. Low pH means more acidity. We all know. Thus more acidic solutions have higher concentration of hydrogen ions H plus and lower pH. ठीक है. So what I wanted to say, we know the formula pH is equal to minus log H plus, and alternatively H plus is equal to 10 to the power minus pH. So if the pH of a solution is 5, the concentration of H plus is equal to 10 to the power minus pH, that is H plus is equal to 10 to the power minus 5. But if the pH is 4, then H plus is equal to 10 to the power minus 4. Thus the concentration of H plus is 10 to the power minus 4. Thus the concentration of H plus increased
in this case by a power of 10 times increase. So low pH, we all know, is more acidity, and more acidic solutions have higher concentration of hydrogen ions. Okay, let's move to the next slide. Unit conversion. Now this is very, very important, and I want to be very clear about it. 1 billion is equal to 1000 million, and I'll explain why I'm doing all this in the next slide. Therefore, 1 parts per million is equal to 1 into 1000 parts per billion, right? Okay. Therefore, 1 ppb is equal to 1 by 1000 ppm. So 1 पार्ट पर मिलियन को जब हम 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन, जब 1 पार्ट पर मिलियन है, जब उसको बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 गुना कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ppb, लेकिन जब पार्ट्स पर बिलियन है, 1 बिलियन है, और उसको हम घटाएंगे, उसको मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 पार्ट पर बिलियन को जब हम मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड होगा, एंड 1 पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू 0.001 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। पानी के केस में क्या होता है, 1 पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक, कोई यूनिट कन्वर्जन कुछ नहीं होता है, वही रहता है। ppm इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर फॉर वाटर। लेकिन 1 मिलीग्राम जो होता है वो होता है 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो 1 पार्ट पर मिलियन of water is equal to 1 milligram per liter is equal to 1000 microgram per liter, since 1 milligram is equal to 1000 microgram, तो यहाँ मिलीग्राम को हमने माइक्रोग्राम में, ठीक है। और जब पार्ट्स पर बिलियन की बात करेंगे तो 1 पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर लीटर इन केस ऑफ वाटर, ठीक है। ये आराम से समझ लीजिएगा, और अगर आपको और देखना है तो मैं थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे पार्ट पर बिलियन है और उसको 1000 पार्ट पर बिलियन था, और जब हमने मिलियन में कन्वर्ट किया तो 1 पार्ट पर मिलियन, सो 1 पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू 1000 पार्ट पर बिलियन, और यहाँ पे 1 पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू 0.001 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया, ठीक है। पानी के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो इससे जुड़ा हुआ है। गैस के केस में the case for gases is very different. It's not like water. So in case of gases, there is a formula. So what will be the concentration of 40 parts per billion of SO2 in microgram per meter cube at 25 degrees Celsius? ठीक है। So options are A 0.04 microgram per meter cube, 1047 microgram per meter cube, 104.7 microgram per meter cube, or 10.47 microgram per meter cube, ठीक है। So let's look at the formula. So here it is, formula to convert parts per billion to microgram per meter cube. Microgram per meter cube is equal to concentration in parts per billion into molecular weight by 22.4. Now why this 22.4? Because at 1 NTP, normal temperature and pressure, or you can call it STP, standard temperature and pressure, same thing, 1 mole of gas occupies 22.4 liter volume, ठीक है। So microgram per meter cube of SO2 is equal to concentration in ppb, that is 40 into molecular weight of SO2 divided by 22.4. So 40 into 64 divided by 22.4, and that is equal to 114.28. That is the answer, and that's the answer here, answer C, 114.28. कभी कभी क्या होता है, मैं एक बार फिर से इसको हिंदी में बता दूं, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को और पीपीबी के बीच में जो फॉर्मूला है वो ये है कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर बिलियन इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 22.4। 22.4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि एक एनटीपी या एसटीपी पे, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या और एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम थिंग है, एक ही बात है। तो 1 एनटीपी या एसटीपी पे 1 मोल गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए यहाँ पे 22.4 की वैल्यू हम डालते हैं। तो सिंपली 40 पार्ट्स पर बिलियन है कॉन्सेंट्रेशन, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट डालेंगे, तो सल्फर का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट होता है 32, ऑक्सीजन का 16, तो S और 2O, ठीक है। और फिर वो होगा 40 इंटू 40 गुणे 64, और भाग देंगे उसको 22.4 से,
और उत्तर होगा 114.28। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को अच्छी तरह रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पर जब कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में होता है तो यहाँ पीपीबी की जगह पर पार्ट्स पर मिलियन होता है। when concentration is expected in milligram per meter cube, then the formula will be concentration in parts per million into molecular weight divided by 22.4. ओके, और आंसर जो सी आए 114.28 वो आंसर है सी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वैल्यू है 114.28 की जगह 104 या कुछ आसपास की वैल्यू लिखी हो, तो भी आप कैलकुलेशन उसी फॉर्मूला से करेंगे और जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी उसको आप टिक करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो बेझिझक कमेंट्स में मुझे बताइए, और मैं हर कमेंट का जवाब 12 से 24 घंटे में डेफिनेटली देती हूँ, कभी कभी जल्दी भी दे देती हूँ, डिपेंड्स कि मुझे कैसे कब पता चला है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए, इन्वायरमेंटल साइंसेस के फ्री लेक्चर्स के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लेटेस्ट अपडेट्स, शॉर्ट वीडियोस और यूजीसी नेट और सीपीसीबी साइंटिस्ट बी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, like this video and share among your friends, and if you have any difficulty please let me know in the comments below. If you didn't understand anything, please let me know in the comments below and I will definitely reply within the next few hours. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Keep watching my channel.